Everybody wave, please. So we have discussed about the different types of bond, and we have also discussed about what exactly is termed as a covalent bond, what is a bond pair, what is a lone pair. Now, we will be talking about certain characteristics. Let us say we have a molecule. That molecule is AB. A simple molecule A, a diatomic molecule A. Now there are two cases. The A and B could be identical, or A and B could be different. If A and B are identical, then in that case, these two are going to have exactly the same electronegativity. And there is an electron pair in between them. Both atoms are going to pull the electron pair towards themselves. And since they have the same electronegativity, they will be able to pull the electron cloud to the same extent. That is, the electron cloud is not going to move towards any direction. It is going to stay right in between. But if A and B are not identical, then one of the two is going to have a slightly more attractive force towards itself. Now, if एक जनरल सा ट्रेंड है हमारे पास, एक जनरल सा कन्वेंशन है, वो ये कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे अगर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करते हैं, then in that case that more electronegative element should be B. It would be pulling the electron cloud towards itself. The electron cloud is going to shift a bit towards B. जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे, then in that case it is going to become थोड़ा सा इधर आ जाएगा. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि the electron cloud is going to spend more time towards B. The electron cloud probability is going to be more towards B than A. तो अब उस केस में हो ये जाएगा कि B के पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन टूट के B के पास चला गया. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड B की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर ऐसे शिफ्ट हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी रीजन यहाँ आ गया. अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ज़्यादा टाइम स्पेंड करना. तो वही आई ना. ओके, अब इसको अगर मैं अरेंज करूं तो इट कैन बी अरेंज लाइक दिस. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. The two equal and opposite charges separated by a small distance. अब इससे पहले कि हम इसका आगे बढ़ें, कुछ सिंपल सी टर्म. एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो आपको पता ही है, थ्रूआउट द कंपोजिशन एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ऑपोजिट हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म समथिंग. इसमें एक और टर्म आती है, उसे बोला जाता है पोलराइजेशन. If a system has a high concentration at a point of a particular kind of species, we call it polarization. ये नॉर्मल टर्म है, इंग्लिश की टर्म. Similar kind of species getting together at a certain point is termed polarization. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो इस सिस्टम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट हो गया है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेट हो गया है. ये पोलराइज हो गया है, दो पोल्स क्रिएट हो गए. This is the positive pole and this is a negative pole. Since two poles have been created, this particular arrangement can be termed as a dipole. And since it is electric charges that have been created, this is termed as an electric dipole. जो मैग्नेटिक डायपोल है, ज्योमेट्रिक डायपोल है. Clear?
मैग्नेटिक डायपोल की बात तो बहुत बार सुनी है, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, तो मैग्नेटिक डायपोल है। अर्थ आल्सो इज डायपोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फाइन। तो और शायद तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वर्ल्ड वॉर से पहले पोलराइजेशन, पावर पोलराइजेशन एंड सो ऑन, तो वो सब चीजें हैं। दिस इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, अब देखो ये जो चार्जेस है ना, ये बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ऑब्जर्व। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल है and somebody, some charge or something is put here, then in that case it's going to observe it as a negative charge, it's going to observe it as a positive charge. अगर मैं किसी को उतनी पोजीशन पे रख दूं, बिल्कुल पीछे पहुंचा दूं, अगर वो वहां से कुछ ऑब्जर्व करता है, then in that case उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्जर्व ही नहीं होंगे, उसे ये एक स्पीशीज नजर आएगा and that will be neutral. Fine. अब देखो हर किसी को एटम न्यूट्रल नजर आता है, इसलिए बोलते हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, बट इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इतनी पास हम इतनी दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें ओवरऑल सिस्टम न्यूट्रल नजर आता है। सोडियम क्लोराइड पॉजिटिव नेगेटिव की पूरी अरेंजमेंट है, लेकिन हम पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, न्यूट्रल होता है। सो अगर हम बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हैं, then in that case this becomes neutral. On the other hand, अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ना तो बहुत पास है और ना ही बहुत दूर है, so we can say that if this particular arrangement is observed from a distance which is large, but this distance is not negligible in comparison to this distance, then in that case इसके लिए, इस particular system के लिए, this is going to be a dipole. किसी दो स्पीशीज में डायपोल क्रिएट हो गया, उसके बाद आप उनके एडिशन में और एटम्स लगाते हैं जैसे, तो एक पॉइंट के बाद तो उसमें मतलब जो चार्ज है वो उसमें भी तो वो चार्ज है तो नहीं, पर एक टाइम बाद वो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या फिर मतलब मैं तो फिलहाल सिर्फ डायपोल की बात कर रहा हूँ, आप क्या क्या इसके साथ छेड़खानी करने वाले वो तो आपकी मर्जी है। फिलहाल डायपोल देखिए। Okay, so this is what we call as electric dipole. तो आप इसको डिफाइन कर दें, लिख लीजिए। Two equal and opposite charges, two equal and opposite charges separated by two equal and opposite charges separated by a small distance constitute an electric dipole. Constitute an electric dipole. The distance is small. The distance is small, but not negligible. The distance is small but not negligible in comparison to the distance of observer, in comparison to the distance of the observer from the dipole. Now, अब कुछ छोटी छोटी चीजें इस डायपोल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, हाउ स्ट्रॉन्ग द डायपोल इज, हाउ वीक द डायपोल इज। तो मुझे ऐसा इसका कोई रीजन नहीं समझ में आया हाउ टू डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ डायपोल, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के मैंने एक चीज बनाई कि लेट्स से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। Now let us say we place this dipole here. अगर हम इस डायपोल को यहाँ पे प्लेस करते हैं, then in that case ये दो अरेंजमेंट में स्टेबल हो सकता है। एक अरेंजमेंट ये हो सकती है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाए,
यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो नाउ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहाँ जितना अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पर उतना अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ जितना रिपल्सिव है यहाँ पर उतना रिपल्सिव फोर्स है। Now in this case the attractive force is going to dominate over repulsive force, and if attractive force is going to dominate over repulsive force, there is going to be net energy released out when the dipole is going to be arranged in this particular system. अगर इसको इस सिस्टम में से यहाँ से निकालना है, then in that case energy needs to be provided. कोई confusion? Fine. Is it clear? Now, अब इस ये कितनी एनर्जी से स्टेबल है, चलो उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। Let us say this distance is r, and this distance is x. This distance also is x. ठीक है? तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालता हूं इसके कंपैरिजन में, let us say this charge is capital Q, ये minus Q है, ये plus Q है, this charge is small q, now the electrostatic tells us कि यहाँ पे जो attractive energy है that is going to be K Q minus Q by X, ठीक है, प्लस ये जो एनर्जी है that is going to be K Q plus Q upon R plus X, ठीक है। So this is the overall potential energy of the system, ठीक है। So this potential energy will turn out to be KQ, बाहर आ जाएगा, और आई थिंक मैं इस Q को भी बाहर निकाल सकता हूँ। So this is going to be Q bracket 1 by R plus X minus 1 by X. This is the energy of the system. Fine. अब actually it is going to be twice of this. क्योंकि इस साइड से दिया है। हाँ। twice ही होगा exactly. इसको छोड़ दो, वो हम सिर्फ डायपोल की एनर्जी कैलकुलेट करें। Now, this is the energy of the system. अब अगर इस एनर्जी को देखा जाए तो ओवरऑल एनर्जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव, क्योंकि देखो x की वैल्यू r plus x से x की वैल्यू r plus x से कम है, तो दिस minus 1 by x is going to be greater than 1 by r plus x, so this entire term is going to be negative. अगर ये एनर्जी नेगेटिव आ रही है मतलब इस सिस्टम की एनर्जी एज कंपेयर टू इंफिनिटी कम है, और अगर कम है तो ये सिस्टम स्टेबल। फाइन। अब अगर मान लीजिए मैं इसको घुमा देता हूं, I rotate this dipole. If I rotate this dipole, then in that case another system is going to be created, and in this system this side is going to be positive and this side is going to be negative. अब अगर यहाँ पे एनर्जी निकालता हूँ तो this energy is going to be the new potential energy is going to be, everything is going to be reversed and it's going to become K Q Q by 1 by x minus 1 by r plus x. Fine. Now, in this particular case,
energy positive. This energy is positive. तो अगर ये एनर्जी पॉजिटिव है then in that case ये उतना ही अनस्टेबल है। अब इम्पोर्टेंट बात ये वाला सिस्टम भी नॉन मूविंग है, ये वाला सिस्टम भी नॉन मूविंग है। दिस सिस्टम इज नॉन मूविंग बिकॉज़ इट हैज एन एक्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दिस सिस्टम इज नॉन मूविंग बिकॉज़ इट हैज अ बैलेंस्ड रिपल्शन। इस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है, इस सिस्टम की एनर्जी कम है। ये दोनों इक्विलिब्रियम पर है, लेकिन ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक तरह से ये समझो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अब यहाँ पर एक बॉल है और एक बॉल यहाँ स्टेशनरी की गई है, रोका दोनों जगह जा सकता है। बट फिर भी एक सिंपल सी बात है कि दिस इज गोइंग टू बी स्टेबल, दिस इज गोइंग टू बी अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाला जो सिस्टम है दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला जो सिस्टम है वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है। अब इसमें मुझे कितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ रही है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। The torque that I have to apply or the energy that I need to supply to change the direction of a dipole in an electric field is the strength of the dipole. Fine. अब ये जो strength of the dipole है ये किस चीज पर डिपेंड है? ये जो सामने हमारे पास एक्सप्रेशन है, I think we can very well find it out. ये Q एक constant quantity है, ये K एक constant quantity है। Fine. तो very obviously it is going to depend on the magnitude of this charge. इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता चला जाएगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू की एनर्जी उतनी, इस पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो सबसे पहली बात, the strength of the dipole is going to be proportional to the magnitude of the charge. दिख रहा है? सर वहाँ पे वो twice and small होगा। सर वो twice होता है। क्या? इधर second वाला है। second वाला। सर वो twice होगा। अगर दोनों की पोटेंशियल देखो कि हाँ तो ये भी twice हो जाएगा, ये भी twice हो जाएगा, दोनों twice हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली वही चीज है, ठीक है? तो पहली बात ये मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पे डिपेंड करेगा। और दूसरी बात एक मजेदार चीज देखो कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उस पर बहुत ज्यादा कुछ डिपेंड कर रहा है। ये x की, ये r की वैल्यू जितनी बड़ी होती चली जाएगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस उतना ज्यादा होता चला जाएगा। एंड सिमिलरली इस एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता चला जाएगा, इसका बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस उतना ज्यादा होता चला जाएगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, इट्स गोइंग टू बिकम समथिंग लाइक दिस। तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, ये गैप इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल, एंड दिस गैप डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वन, इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेपरेशन, and second is going to depend on the distance between the two charges. दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होता चला जाएगा, ये डिफरेंस उतना ज्यादा होता चला जाएगा। Is that clear? जितना चार्ज पर सारा डायपोल का जो मैंने बोला वो क्लियर समझ में आया? हाँ, जितना ये Q ज्यादा होगा, डायपोल की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। जितना ये R ज्यादा होगा, उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है? So this strength is also proportional to R. ठीक है? So very obviously, physics के हिसाब से it should be proportional to Q R. हो गया नहीं? यहाँ बताओ। R जितना ज्यादा होता चला जाएगा, मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होता है, कम नहीं होता। ये बात समझ में आई? देखो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने है एंड यू आर स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स ही लगाया है, कोई मैंने लॉजिक नहीं बताया। मैग्नीट्यूड दिख रहे हैं? सर x डायपोल स्ट्रेंथ। हाँ, अब देखो यहाँ पर भी जो तुम्हारा लॉजिक है ना, तुम्हारा लॉजिक कहता है कि सर R इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस एक परसीव्ड क्वांटिटी है,
आप कुछ भी ले सकते हो। तो एक काम करते हैं, जस्ट टू मेक इट फिक्स्ड, लेट्स मेक इट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल डिपेंडेंट है is termed as dipole moment. It is not the strength of the dipole, but it's the measure of strength of the dipole. It is not the strength of the dipole. It is the measure of the strength of the dipole known as the dipole moment. Dipole moment. M-O-M-E-N-T. मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम सुना होगा ना? हाँ, वही वाला मोमेंट है। This is the dipole. अब magnitude of Q, charge separation, that's a simple thing. Important बात ये आ जाती है, R displacement है, जो भी नहीं है, लेकिन displacement एक वेक्टर है, और वेक्टर के लिए डायरेक्शन देना जरूरी है। हमारे पास दो ही डायरेक्शन हो सकती है, एक पॉजिटिव से नेगेटिव, एक नेगेटिव से पॉजिटिव। अब सवाल ये कौन सा है? क्यों? कंवेंशन का तो रीजन होता है ना, आपसे किसने कहा कि पॉजिटिव वाला हाई पोटेंशियल होता है? कैलकुलेट करके तो मैथमेटिकली है हुआ ना। अब हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है, बताओ नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज? यहाँ पे अगर मैं लिख रहा तो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लिख दो तो नेगेटिव चार्ज, बताओ इनका कोई डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव को अट्रैक्ट करना, नेगेटिव क्या डिफरेंस होता है? सर पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, अगर नॉक ऑफ किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव तब होता है जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन गए, एक दो न्यूट्रल स्पीशीज, एक में से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला, नॉक ऑफ किया, निकाला, दूसरे में डाला, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? फिर बट ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की बात समझ में आई बात? फिर एक बार मैं बताता हूँ, फिजिक्स में डायरेक्शन ऑफ द डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट फिजिक्स वालों ने दिखाया, केमिस्ट्री वालों ने नहीं। फिजिक्स वालों ने क्या किया था? उन्होंने लिया कि there are two spheres neutral. Now if I want to make them charged, equal and oppositely charged, therefore I have to take out some charge from one sphere and put it onto another sphere. At that time they were talking about the movement of positive charges. तो अगर मैं इसमें से पॉजिटिव निकालूं और इसमें डालूं, तो this will become negative and this will become positive, and there will be a movement of the charge from negative towards positive. So they talked about the dipole movement from negative towards positive. Chemistry वाले इलेक्ट्रॉन, तो उस समय इलेक्ट्रॉन का अप्रोच करते हाई इलेक्ट्रॉन का तो बहुत बात है। तो जब इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आया, केमिस्ट्री वाले नई किताबें लिखना शुरू हो गए, तो जब केमिस्ट्री वाले ने किताब लिखी तो उन्होंने कहा यार हमारे पास नया कंसेप्ट है, हम तो नई बातें लिखेंगे। उनको एक लॉजिक मिल गया केमिस्ट्री को फिजिक्स के अगेंस्ट जाने का, तो दे यूज दैट लॉजिक और उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन from a sphere so that it becomes positive, and we are going to put the electron on another sphere so that it becomes negative. When we are talking about the movement of electrons, the dipole moment direction is going to become from positive towards negative. लिया है, हर जगह लिया है, जहां भी पॉसिबल था वहीं पर पंगा लिया है। Now, so therefore, in chemistry, the direction of the dipole moment is from positive towards negative. ऐसा नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ता है,
doesn't make any damn sense, any damn difference. क्योंकि हम बात करते हैं जब वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो सिर्फ एरो इधर लगाने की जगह इधर लगा तो बात करता है, मैग्नीट्यूड वही है, इफेक्ट वही है, सारी की सारी चीजें वही है, बस डायरेक्शन होती है. So just be a little careful. If physics करते हो और chemistry करते हो confuse मत. So we have just talked about what the dipole moment is. We have talked about what the strength of the dipole is, and we have just talked about what we are going to do. तो ये हमने dipole moment की बात. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाने कॉन्सेप्ट लगाने के साथ साथ मुझे क्यों भी डिफाइन करना पड़ता है कि इतनी स्ट्रेंथ में रखा जाए तो कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, अब ये है डायपोल मोमेंट. The moment we talk about a dipole moment, this is a physical quantity, this is a physically measurable quantity. When it's a measurable quantity, we need to have the units for that particular quantity. Maybe it might not have dimension, but we need to have units. So, to define the unit, I think here it's quite easy to define. Mu is equal to QR. So, the obvious unit, the obvious SI unit would turn out to be Coulomb meter. Right? The right question. So, but actual is कितना है? इसका actual SI unit पे है? ठीक है. ये जैसे अगर न्यूटन मीटर को Joules. exactly तो यहाँ पे न्यूटन मीटर का है. से बट यहाँ पे कूलम मीटर को नाम यार ये फिजिक्स वालों एक पैनल करो. ऐसे में तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं आता. अरे जितने भी क्वांटिटीज के चार्ज दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, केमिस्ट्री में कहाँ जाएगा? ओके, देखो क्वेश्चन. कैलकुलेट the dipole moment of a molecule in which the electron moves from one atom to other, across a bond length of 1 angstrom. Answer. सिर्फ वाला आंसर -9 नैनोमीटर होता -9. Capital C, capital smaller लिख सकते हो, लेकिन वो सेंटीमीटर लग जाता है इसलिए आप लोग प्रेफर करें. हाँ 29 है. Now, अगर हम इसकी बात करें, if we move forward, इसको हम CGS यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. CGS यूनिट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज is 4.8 10 raised to power -10 ESU. ESU is the electrostatic. CGS यूनिट का एक बड़ा मजेदार सा एडवांटेज है. You know it. इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होता है. तो जरा CGS यूनिट में डायपोल मोमेंट निकाल दीजिए इसी.
कितनी वैल्यू है? -18 आपको दूसरा 2 यूनिट So this is 4.8 into 10 to minus 18 ESU centimeter. अब एक बार देखो कि जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की I'm not talking about anything. अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, then in that case we will be talking about the molecules, we are going to talk about atoms, we are going to talk about atomic radii, we are going to talk about the bond lengths. Bond lengths एंगस्ट्रॉम में होती है, मीटर नैनोमीटर में भी नहीं आएंगे. Then चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, पार्टिकल मूव कर जाएगा. बहुत खींचोगे तो 2 मूव करवा दोगे. तो कहने का सीधा मतलब ये है कि जब आप किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट की बात करोगे, so this part that is 10 raised to minus 18 ESU centimeter, this particular part is going to be always in it. The जो भी आप मेजरमेंट करोगे उसमें 10 raised to minus 18 ESU centimeter तो आएगा ही. ये चीज चेंज होती चली जाएगी, ये पार्ट ऐसा चीज रहेगा. उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस इससे मल्टीप्लाई होता जाएगा. यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम की जगह 1.5 हो जाएगा, 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और क्या होगा. So this particular factor is going to be there in the dipole moment of every molecule. Therefore, this particular factor has been given a unit. This has been made a unit, and that is called a divide. One divide is 10 raised to minus 18 ESU centimeter. So I can say this particular dipole moment is 4.8. The dipole moment develops when an electron moves from one atom to another across a bond length of 1 angstrom is 1.6 into 10 raised to minus 29 coulometer, which is 4.8 into 10 raised to minus 18 ESU centimeter, which is 4.8 divide. So what will be the value of 1 divide in coulometer? Find out. What is the value of 1 divide in coulometer? 10 minus 10 to the minus 30. Check करो. Somewhere around. मैं अराउंड ही चेक करके बता. Somewhere around. into 10 raised to minus 30 coulometer. So 1 divide is 3.33 into 10 raised to minus 30 coulometer. Now be very clear, ये बहुत ही वेला सा क्वेश्चन है. एग्जामिनर का अगर मूड हुआ इजी पेपर बना देगा तो ये क्वेश्चन डाल देगा. The value of 1 divide is अब एक चीज और देखो, अगर हम बात करते हैं that the electron has moved from one atom to another across the bond length of 1 angstrom, what kind of a bond are we discussing about? What kind of a bond will it be? If an electron moves from one atom to another across a bond length of 1 angstrom, what kind of a bond will it be? Single covalent bond. It is going to make an ionic bond.
will form as ionic bond. So you need to understand that a complete transfer of electron is going to lead to the maximum dipole moment, and that would mean an ionic bond. So ionic bond, a complete ionic bond is the extreme case of the dipole moment, the highest dipole moment that you can attain. आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन सा डायपोल की बात करोगे, वहां पे सारे के सारे डायपोल पूरा लैटिस है. Clear? So this is a theoretical extreme. Fine? This is a covalent bond का लेंथ कम होता है और आयनिक बॉन्ड का लेंथ कम होता है. लेंथ तो न्यूक्लियस के बीच में होती है. हाँ मतलब रेडियस कोवेलेंट रेडियस कम होता है. कोवेलेंट रेडियस छोटा होता है. बट आयनिक रेडियस को तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना. आयनिक रेडियस के अंदर तुम्हें न्यूक्लियस की दूर से पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे कैटायन खत्म हो रहा है, कहाँ से आयन शुरू हो रहा है. बिना मेजरमेंट के कंपेयर कैसे करोगे? वो तो थ्योरी है ना, जो मर्जी कंपैरिजन बना लो. तो कोवेलेंट जो बॉन्ड होगा उसमें डायपोल निकालेंगे, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, पूरा बॉन्ड. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर वो बॉन्ड आयनिक नहीं है और वो भी कंप्लीटली आयनिक नहीं है, तो जो डायपोल मोमेंट आएगी that will be less than this extreme value. ठीक है? कोई कंफ्यूजन इस बारे में? This will be an extreme value. So ionic bond is the extreme case of the dipole moment. जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उन सब की जो डायपोल मोमेंट है वो इस वैल्यू से कम आएगी, मेजर्ड वैल्यू. एक बड़ा सिंपल सी बात आती है, अगर मैं इस मेजर्ड वैल्यू को इस थ्योरेटिकल वैल्यू से कंपेयर कर लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है. You may even say what is the percent charge transferred or what is the percent ionic character. Fine. So you can say that the percent ionic character or percent charge transferred is equal to the observed dipole moment divided by the theoretical dipole moment. That is the maximum dipole moment, and that is for the ionic bond, multiplied by 100. This will give you the percent ionic character or the percent charge transferred. अगर you 100 नहीं करते तो you will get the fraction of the charge transferred. Fine. तो एक क्वेश्चन लिख लो. आयनिक कैरेक्टर मतलब उस मॉलिक्यूल की बात है. हाँ. एक क्वेश्चन लिखिए. A molecule AB has an observed dipole moment the molecule AB has an observed dipole moment of 1.5 dpi. Molecule AB has an observed dipole moment of 1.5 dpi and a bond length of
1.2 angstrom. Full stop. Considering one electron movement. Calculate the percent ionic character. Calculate the percent ionic character. Observed or theoretical? You are in CO batch. So theoretically, you should be getting the marks above 300 out of 360. Observed marks? समझ में आ गया difference? यही है. If it was 100% ionic, its dipole moment should be equal to the calculated value. लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू ऑब्जर्व होती है, dipole moment are experimentally observable quantities. दे तो रखा है तुम्हें. Theoretical वैल्यू कैसे पता करेंगे बताना पड़ेगा क्या? ये क्या है? कितना है? 26.0. 4.8 से मल्टीप्लाई करना भूल गए. उसने भी चीटिंग करी है.
8 into 1.2. ठीक है, मेथड आपका सही था बट थोड़ा सा इसका परसेंटेज आया नहीं है। कोई कंफ्यूजन? ओके, ये जो डार्क मोमेंट्स हैं, these are vector quantities. Vector quantities can be added, can be subtracted, and they can give a result. So we can talk about the vector quantities giving a result. Let us say we have a molecule. A molecule के अंदर हमारे पास दो तरह के bonds हो सकते हैं. We can have polar bonds and we can have non-polar bonds. The bonds which are formed between different atoms are polar bonds, क्योंकि उनके बीच में charge separation होगा. And the bonds formed between the identical atoms are going to be non-polar bonds, क्योंकि उनके बीच में charge separation नहीं है. Is it clear? So that is what we can talk about the polar and the non-polar bonds. Now let us talk about certain very simple observations. There is a molecule, carbon dioxide. So when we talk about this molecule, carbon dioxide, it is supposed to have polar bonds. दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो भी बॉन्ड बनेगा वो एक पोलर बॉन्ड होगा. Now the observed fact is that carbon dioxide is a non-polar molecule. Approach different. You are approaching it from what you know. I am approaching it from what you can. That's a different approach. When I say carbon dioxide has carbon and oxygen bonds, and carbon dioxide is non-polar, the one thing is very sure: carbon dioxide cannot have non-polar bonds, or it cannot have non-polar attractions. The carbon dioxide has polar bonds, but the molecule is non-polar. This tells me that the carbon dioxide must be a structure in which the dipole moments cancel each other. Carbon dioxide has carbon-oxygen bond. Carbon and oxygen are not equally electronegative. The carbon and oxygen bond is going to be a polar bond. But what we know is that carbon dioxide is non-polar. So if carbon dioxide is non-polar, then in that case these two bonds must be exactly opposite to each other, and their dipole moment should be exactly equal to each other. Otherwise this compound cannot be non-polar. Fine. So from this particular observation of dipole moment, we can say that this carbon dioxide has equal and opposite dipoles which cancel each other. So the overall molecule becomes non-polar. Am I clear with that? ठीक है, देखो अप्रोच अलग है. एक अप्रोच है what you know and accordingly you say हाँ ये तो आएगा. दूसरा ये आया है from this particular observation what you can. We are talking about that. Now there is another one. Let us say. जी, structures are derived from dipole. Fine. Let us say हमारे पास एक मॉलिक्यूल है. ये मॉलिक्यूल था AB2. So an AB2 molecule having a zero dipole moment has to be linear. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसमें कौन से एटम. Fine. Then let's say we have an AB3 molecule with a zero dipole moment. AB3 molecule with a zero dipole moment. What should be the structure? Make it. बना दे. कुछ नहीं बना दे तो बना दे.
बता दीजिए। क्या बताया? The molecule is non-polar. In the structure. हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है जिससे ये डायपोल मोमेंट जस्टिफाई हो। Make the structure which justifies the dipole moment to be 0. दो डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट तीसरे डायपोल मोमेंट को कैंसिल करना चाहिए। ऐसा बताओ। So this structure should be this in an angle of 120 degrees. Okay. So now BF3 is not polar. So very obviously this is going to be the structure of BF. Yeah. अगर मेरे पास AB4 हो which is non-polar. Make it. Make the structure. AB4 could have two possible structures, not one but two. It could have this structure. ये स्ट्रक्चर हो सकता है और दूसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है। यहाँ एंगल 90 डिग्री है और यहाँ एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पड़ जाएगा। तो कैसे रिपल्शन किसी ने बताया तुम्हें रिपल्शन? किसी ने बताया तुम्हें रिपल्शन? ये रेगुलर नहीं है? CCl4 का एग्जांपल मैंने CCl4 का एग्जांपल लिया। सर एक चीज क्वेश्चन से BF ओके CCl4 नॉन पोलर है। CCl4 नॉन पोलर है। क्या उसके नॉन पोलर से ये पता चलता है इन दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर है उसका? नहीं। पहला वाला क्यों होगा? पहले वाला क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। बताओ भाई पहले वाला क्यों नहीं होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा।
कोई चीज आपको दी जाती है ना, जब कोई ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाता है, तो क्या उसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगा। जब आपसे ये पूछा जाता है व्हाट कुड बी द स्ट्रक्चर, देन मेक ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हाटएवर इज द पॉसिबल। उसके बाद और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिससे पता चलता है। It's all experiment observation based. So if I get AB4 molecule which has a zero dipole moment, that is it's a non-polar molecule, then in that case it can have two possible structures. It could be square planar or it could be a tetrahedron. अगर सही मायने में देखा जाए तो इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। फाइन, पर ठीक है, सिमेट्री जैसे आपने बोला तो सिमेट्री रखते हुए दोनों स्ट्रक्चर फाइन इनफ। अगर मैं यहां पर AB5 की बात करूं विद जीरो डायपोल, AB5 with a zero dipole moment, what could be the structure? Make it इसके अंदर अगर मैं जीरो डायपोल मोमेंट की बात करूं, देखो अगर डायपोल मोमेंट की बात करनी है, डायपोल मोमेंट हो तो बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन अगर मैं जीरो डायपोल मोमेंट की बात करता हूं तो एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये बन सकता है, a regular pentagon, जिसके अंदर जीरो डायपोल, सारे एंगल 70 फाइन। दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है और दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, there will be a triangle here, एक ऊपर एक नीचे. This particular structure is called trigonal bipyramid. वो triangle छोड़ने वाली और वो जो dashes के डैश का मतलब ये पीछे जा रहा है और ये इसका मतलब आगे, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है. अब 3 dimensional structure ये वाला ऐसे. This particular structure means it's moving out towards you. This means it's moving away from you. And this is parallel to you, neither towards you nor away from you. This particular structure is called trigonal bipyramid. So dashes का मतलब away from you और नहीं और क्या इसमें नॉन पोलर होना चाहिए. स्क्वायर पिरामिडल पॉसिबल है. तो पीछे जा रहे हैं और एक बाहर
अगर मेरे पास A, B, 6 नॉन पोलर, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसके अंदर भी दो स्ट्रक्चर्स इजीली पॉसिबल, वैसे इसमें तो और भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, लेकिन दो तो हो सकते हैं। एक हेक्सागन बन सकता है और एक स्क्वायर बाइपिरामिड। वैसे मतलब बीच में ए है और बाकी 6 बी है। ये अपने आप में नेचर नहीं, ऐसे बना दिए। मतलब वो समझ गया सर। आप ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हो एक ना यार, यही कह रहे हैं हम, और क्या ये भी है, 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 ये भी है। They are not attached to each other. They are attached to A. This is what we call as trigonal antiprism. Trigonal antiprism. Prism ऐसे है, मतलब प्रिज्म के अंदर भी डार्क मोमेंट 0 है, ये ट्विस्टेड है। It's trigonal antiprism. Anti, A-N-T-I, opposite. Twisted. सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ये possible है। And very obviously, ये वाला structure भी possible है। जिसे आप स्क्वायर बार पिरामिड बोल रहे हो, आपको ये पता है, आपने जब टेट्राहेड्रन वर्ड बोला था तो उसमें हेड्रन क्या होता है? टेट्रा मींस 4, हेड्रन इज faces. Hedron word is used when the faces are regular structures. Regular मतलब कि या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या स्क्वायर्स है या रेगुलर पेंटागन है या रेगुलर हेक्सागन है, तो हेड्रन वर्ड यूज होता है। जब हम यहाँ पे पेंटागन की बात, ये ट्रायंगल बार पिरामिड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेगुलर ट्रायंगल नहीं बनेगा। This is not going to be a regular triangle, and therefore this can't be called as a hexahedron. It's called a trigonal bar pyramid. But when we have this kind of a structure, here again, this is going to be an equilateral triangle, and it's going to have 8 faces as equilateral triangle. So this particular structure is called octahedron. Fine, a regular octahedron. That again is going to make its dipole moment 0. So you made certain structures in which we talked about that how could a dipole moment be 0 of the molecules which have polar bonds. They might have a certain structure in which dipole moments cancel each other, and so the dipole moment turns out to be 0. The molecule comes out to be non-polar. Fine. तो ये हमने देखा किस तरीके से मॉलिक्यूल्स नॉन-पोलर हो सकते हैं। Now we get along with certain very important and easy examples. अब जैसे कि मेरे एक
10th के प्री बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, that was why is water polar? Why is water polar? अब सवाल ये आ गया कि yes, it's very clear इसका डार्क मोमेंट 0 नहीं है। अब अगर मैं सिर्फ यही दूँ इसका डार्क मोमेंट 0 नहीं होगा, ये तो वही लिखा हुआ है, पोलर का मतलब है डार्क मोमेंट 0 नहीं है, तो बताओ डार्क मोमेंट 0 क्यों नहीं है? स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या है उसका, क्या होना चाहिए? अगर लीनियर है तो उसमें वो लोन पे सर ऐसे देखो, मैं तो ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति था इसलिए मैं आंसर लिख कर आया था, बिकॉज़ इट्स फाउंड ऑन द फोर्स। अब ये आंसर दोनों तरीके से गलत है, क्योंकि पहली बात तो ये सही आंसर नहीं है, दूसरा फोर्स पे वाटर नहीं होता, बर्फ होती है। तो अब सुनो, when we talk about the why water is polar, water is polar, that is very much known fact. वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, इसके अंदर भी दो पोलर बॉन्ड्स हैं। अब जब दो पोलर बॉन्ड्स की बात की जाती है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, देन इन दैट केस अगर ये नॉन पोलर होता तो बहुत सिंपल था, हम सीधा सीधा उसको स्ट्रेट लाइन में लीनियर बना देते, पर ये लीनियर नहीं है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका स्ट्रक्चर बेंट होना ही चाहिए, इट कैन नॉट बी लीनियर। सो देयरफॉर they observe the dipole moment of water molecule. They observe the bond length, and depending on that, they gave a bond angle of 105 degrees to water molecule. तो यहाँ पर 105 डिग्री के एंगल। अब देखो, ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए हैं, उसके बाद अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन। अगर अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन दैट केस ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम ये बनाते हैं कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे डार्क मूवमेंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे डार्क मूवमेंट, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिए तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। अब why can't we talk about a dipole moment कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ऑक्सीजन का न्यूक्लियस या कोर, और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी dipole moment होनी चाहिए। इसको खींचना, चार्ज सेपरेशन है या नहीं? चार्ज सेपरेशन है ना? So I have equal and opposite charges separated by a small distance, equal and opposite charges separated by a small distance. So there must be a dipole moment in this direction, there must be a dipole moment in this direction. Chemistry में dipole moment positive से negative की तरफ है, positive ऑक्सीजन के कोर है, और यहाँ पर एक dipole moment ऐसे है, घूमते रहे, जहाँ जहाँ जाते रहेंगे वहाँ वहाँ dipole moment घूमती रहेगी, रोटाओ, क्या दिक्कत है? पर एक बात कंफर्म है कि रोटते रोटते ये कभी यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ आ गए तो साइड आर्गुमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। So these two will rotate here, bond will rotate here, तो इसकी आर्गुमेंट ऐसी रहेगी, इस डायरेक्शन, इसकी भी आर्गुमेंट इस डायरेक्शन रहेगी, तो ऐसा इसके अंदर 4 आर्गुमेंट्स होते हैं। जो कोई अगर इंडिविजुअल एटम है, एटम कोई भी एटम, सिंगल एटम, वो पोलर होगा ही नहीं, इसमें टाइप वो हमेशा 0 होगा क्योंकि उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। बेटा, dipole moment requires polarity, uneven distribution, concentrated distribution at one place. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर is going to be, this is a lone pair also is a concentrated charge, polarity तो होगी ना, so it's going to be a dipole.
तो यहाँ पे 4 dipole moments add हो जाएंगे and we are going to get a net dipole moment in this direction. So if somebody asks you why is water polar, then the simple answer is water contains the polar bond between hydrogen and oxygen which are not linear. The structure is a bent where the dipole moments do not cancel each other, therefore it becomes polar. Fine. So that is how water is polar. अब इसी तरीके से एक और कंपाउंड की बात करें. कोई बॉन्ड नहीं है, चार सब्सिट्यूशन तो इसकी बहुत ज्यादा है. तो फिर ऊपर वाले ज्यादा स्ट्रांग है डाइपोल नहीं नहीं करता. रिजल्टेंट ऊपर वाला निकालोगे नीचे वाला निकालोगे तो कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल नहीं है ना. नहीं कैंसिल मतलब ज्यादा ऊपर वाला तो भाई दोनों डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है. ऐड हो रहे हो, कैंसिल नहीं हो रहे. Okay, now let's talk about NH3. The NH3 also is polar. NH3 also is polar. तो इसका मतलब ये हुआ कि NH3 is also behaving as if it is AB4. But instead of B, one of the B, we have the electron pair. अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसा है. The angle is ठीक. मजेदार सी चीज देखोगे, अगर एक भी लोन पेयर ना हो तो एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. एक लोन पेयर हुआ एंगल हो गया 107. दो लोन पेयर हुए एंगल हो गया 105. मतलब कि हर लोन पेयर से एंगल 2 डिग्री कम होगा. 109 डिग्री 28 मिनट से हो गया 107 डिग्री, 107 डिग्री से हो गया 105 डिग्री. ठीक है पता वो राइट ऑब्जर्वेशन है. कोई कंफ्यूजन नहीं था. मुझे क्या पता हो रहा है, ऑब्जर्वेशन है. मैंने ऐसा कुछ कहा था. मैंने ये कहा कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट्स एक दूसरे को ऐड करते हैं, कैंसिल नहीं करते. अमोनिया ऑल्सो इज पोलर. अब ये बड़ी देर से तुम सवाल पूछे जा रहे हो तो मैं भी एक सवाल पूछ ही लेता हूं. ये NH3 है. एक मॉलिक्यूल है NF3. NF3 ठीक है. क्वेश्चन छोटा सा है, दोनों पोलर है. किसमें डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? Which of these two has a higher dipole moment and why? Dipole is towards fluid, so it cancels the dipole of lone pair. और NH3 में ऐड हो जाएगा. कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर बना, dipole moment बना दोगे.
दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज सेपरेशन और लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। नाइट्रोजन फ्लोरीन के अंदर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल 4 है और नाइट्रोजन 3.07, हाइड्रोजन की 2.1। मजेदार बात, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो चार्ज सेपरेशन और नाइट्रोजन फ्लोरीन का चार्ज सेपरेशन बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों केस में बराबर है, एक फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। दूसरा NH बॉन्ड NF बॉन्ड लेंथ की सिमिलर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर रह जाता है, the direction of the dipole of the bond and the loop। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया, NH3 में डायपोल्स ऐड हो गए, NF3 में अपोज कर गए, NH3 का डायपोल मोमेंट कम हो गया। NH3 का डायपोल मोमेंट जो मुझे याद है that is 1.43 डिवाइड NF3 का 0.3 towards A. Fine? So that is what we talk about, the dipole. सवाल भी नहीं सुना है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन से कोई खास, तो बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है। इज दैट क्लियर? ये जो क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं, these are not the difficult ones, these are the standard ones। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल से कैलकुलेट कैसे 4 नंबर देना है, we did electronegativity, हमने इलेक्ट्रॉन एटॉम कंप्लीट किया। ठीक है, ओके। So that is what we have talked about this particular chapter। ये हमने डायपोल मोमेंट्स के बारे में। अब किसी भी मॉलिक्यूल को हम उसकी सारी डायपोल मोमेंट्स ऐड करके एक सिंगल डायपोल मोमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर से ऐड कर देंगे, किसी की डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगी, किसी की डायपोल मोमेंट पॉजिटिव आ जाएगी। तो एनी स्पीशीज व्हिच हैज अ नॉन-जीरो डायपोल मोमेंट, non-zero net dipole moment is termed polar। A species in which all dipole moment cancel out, that becomes non-polar, that becomes polar। ठीक है, ओके। नाउ हमारे पास जो स्पीशी है, किसी के अंदर पोलर बॉन्ड्स हैं, अगर हमारे पास कुछ डायटॉमिक मॉलिक्यूल which has different atoms, तो वहां पे सोचने की जरूरत नहीं है। Diatomic molecule having different atoms, heteronuclear diatomic molecule will always be polar। अच्छा, एक बड़ा मजेदार सा सवाल है। We have a compound O3, a compound being a molecule, will it be polar or not? ये peculiar molecule है which is having no polar bond but the molecule is polar। It does not have a polar bond but the molecule is polar।
Yeah, but afterwards the whole pair state. What